السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں خوش آمدید۔ میں ہوں کنیز فاطمہ، میں ہوں ارباب جہانگیر اور میں ہوں شائستہ شہزاد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلٹن میں بات ہوگی۔ مینڈیٹ کسے ملا؟ الٹیمیٹم ٹائم اوور۔ میئر کا چناؤ کیسے؟ الیکشن سے کون بھاگا؟ تحریک انصاف کا معاشی پیپر۔ اور کوئٹہ میں برف باری۔ اور سب سے پہلے سب سے اہم خبر حکومت کے ہوں گے۔ عمران خان کی جانب سے کہا گیا الیکشن جتنی جلدی ہوں گے ملک کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو رجیم چینج کے بعد افغان حکومت نے ٹی ٹی پی کو پاکستان جانے کا کہا۔ غنی حکومت ٹی ٹی پی کی سرپرستی کرتی تھی، ٹی ٹی پی افغانستان سے پاکستان پر حملے کرتے تھے۔ عمران خان نے یہ تازہ انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت کے مزید 2 ماہ تباہ کن ثابت ہوں گے، الیکشن جتنی جلدی ہوں گے ملک کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ عمران خان نے تازہ انٹرویو دیا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ حکومت کے مزید 2 ماہ تباہ کن ثابت ہوں گے، فوری طور پر الیکشن ہوں، ملک کے لیے یہی بہتر ہے۔ یہ حکومت مزید 2 ماہ رہی تو معاشی طور پر مزید تباہی آ جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے اس انٹرویو میں کہا کہ رجیم چینج کے بعد افغان حکومت نے ٹی ٹی پی کو پاکستان جانے کا کہا۔ غنی حکومت ٹی ٹی پی کی سرپرستی کرتی تھی، ٹی ٹی پی افغانستان سے پاکستان پر حملے کیا کرتے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے تازہ انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن فوری طور پر ہونے چاہیے، پاکستان کے لیے یہی بہتر ہے۔ اگر حکومت مزید 2 ماہ گزار جاتی ہے تو معاشی حالات مزید تباہ کن ہو جائیں گے اور ملک دیوالیہ بھی ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے افغانستان سے متعلق بھی گفتگو کی اور کہا کہ رجیم چینج کے بعد افغان حکومت نے ٹی ٹی پی کو پاکستان جانے کا کہا۔ غنی حکومت ٹی ٹی پی کی سرپرستی کرتی تھی، ٹی ٹی پی افغانستان سے پاکستان پر حملے کرتے تھے۔ عمران خان نے تفصیلی انٹرویو برطانوی نشریاتی ادارے کو دیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ مزید 2 ماہ اگر یہ حکومت گزارتی ہے تو وہ پھر ملک کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا یہ تازہ انٹرویو جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت کے مزید 2 ماہ تباہ کن ثابت ہوں گے، الیکشن جتنی جلدی ہوں گے ملک کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے رجیم چینج کے بعد انہوں نے کہا کہ افغان حکومت نے ٹی ٹی پی کو پاکستان جانے کے لیے کہا۔ انٹرویو میں ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ جیسے افغانستان میں رجیم چینج ہوئی تو افغانستان میں جو ٹی ٹی پی بیٹھی ہوئی تھی افغان گورنمنٹ نے انہوں نے کہا کہ اب پاکستان واپس جاؤ۔ پچھلی جو غنی حکومت تھی وہ ان کو پیٹرنائز کر رہی تھی، ادھر سے یہ حملے کرتے تھے پاکستان میں۔ جب یہ دوسری گورنمنٹ آئی انہوں نے کہا واپس جاؤ۔ اب جب انہوں نے واپس آنا تھا تو پاکستان کے پاس کیا راستے تھے؟ 2 راستے تھے نا، یا تو ان کو 40,000 لوگوں کو جن کو فیملیز اور یہ فائٹرز تھے ان کو کھڑا کر کے تو گولی مار دیتے، اگر وہ نہیں کرنا تھا تو ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا تھا۔ اور یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ تھی اس کے لیے کہ ہم نے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، اور ریہیبلیٹیٹ کیا ہی نہیں۔ وہ آئے اور یہ ایک دم نہیں ہوا، یہ آہستہ آہستہ جب ان کو وہ لوگ آنا شروع ہوئے، کوئی ان کو کوئی ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا، ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی، ان کے اوپر کوئی پیسہ نہیں خرچ کیا جو ہم نے فیصلہ کیا تھا۔ ہوا کیا کہ اب آہستہ آہستہ وہ بڑھنا شروع ہو گئی، اور وہی جو ہمیں خوف تھا کہ یہ جب واپس آئیں گے تو اگر آپ نے ان کے لیے توجہ نہ اس کے اوپر دی تو پھر آہستہ آہستہ جگہ جگہ شروع ہو جائے گی دہشت گردی، وہ شروع ہو گئی۔ پہلے تو انہوں نے قانون کی بالادستی، رول آف لا کی دھجیاں اڑا دی ہیں، یعنی اپنے آپ کو قانون کے اوپر کر دیا، ساری اپنی چوری معاف کروا دی ہے۔ یعنی وہ کیسز جو ان کے دور میں بنے ہوئے تھے، یہ تو پچھلے 2008 اور 2018 کے بیچ میں کیسز تھے، وہی اپنے سارے کیسز معاف کروا دیے ہیں۔ شہباز شریف، نواز شریف، مریم، یہ سارے بچ گئے ہیں، زرداری، ان سب کے کیسز ختم ہو گئے ہیں۔ تو اس سے زیادہ ظلم معاشرے میں کیا ہوگا؟ تو اس لیے جتنی دیر یہ جائیں گے ان کا تو مقصد صرف اپنے کیسز ختم کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ 2 مہینے اس وقت بڑے دور لگ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگست تک، میں تو ابھی کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں تو خطرہ یہ ہے کہ جس طرح آج ہماری اکانومی ٹینک کر رہی ہے، ہمارے $4 ارب کے تو ریزروز رہ گئے ہیں، ہمارے سارے $4 ارب کی تو چیزیں پڑی ہیں پورٹ کے اوپر جو اٹھا نہیں رہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، بے روزگاری، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ ہمیں تو 2 مہینے ان کے گزارتے ہوئے مشکل لگ رہے ہیں۔ میری اپنی پیشن گوئی یہ ہے کہ جو بھی ہو جائے یہ اب گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی الیکشن کروانے کے لیے اپریل میں۔
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बरतानवी नशरियाती इदारे को ये इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 माह तो बहुत दूर है, अगर ये हुकूमत रहती है तो बहुत से मसाइल बढ़ जाएंगे। अहम खबर आपको देंगे। इस्लामाबाद की अदालत की जानिब से बड़ा फैसला आ गया। बोल न्यूज के सहाफी शाहिद असलम की जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत ने 50,000 के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। जमानत स्पेशल सेंट्रल जज आजम खान ने मंजूर की है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, इस्लामाबाद की अदालत का बड़ा फैसला सामने आ गया है। बोल न्यूज के सहाफी शाहिद असलम की जमानत मंजूर कर ली गई है। इसी पर बात कर लेते हैं। एहतशाम अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, बताइएगा, बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। जी बिल्कुल, FBI डाटा लीक केस शाहिद असलम जिनको लाहौर से FIA ने गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार किया था, फिर इस्लामाबाद मुंतकिल किया। पहले उनका 2 रोज़ा जो है जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ, उसके बाद दोबारा अदालत पेश हुए, फिर उनको जुडिशल किया गया। आज आजम खान की अदालत में उनका केस था। आजम खान ने दलाइल सुने, जहाँ पर मियाँ इशफाक अली और अहद खोकर ने और जो उनकी पूरी टीम थे उन्होंने मुकम्मल दलाइल दिए और अदालत को बताया कि सहाफत कोई क्राइम नहीं है। एक सहाफ़ी को एक ऐसे केस में उठा लिया जहाँ पर वो सहाफत कर रहा था, और दूसरा इसमें सबसे अहम बात यह है कि ऐसे केस में उठाया गया जिसमें उसका नाम ही नहीं है। तो अदालत ने दलाइल सुनते हुए, हालांकि FIA के जो वकील हैं और प्रोसिक्यूटर हैं और जो उनकी पूरी टीम थी उन्होंने बड़ी मुखालफत की, उसके बावजूद अदालत ने ये बड़ा फैसला किया है और शाहिद असलम जो बोल न्यूज़ के सहाफ़ी हैं उन्हें रिहा करने का हुक्म किया है। रिहाई की जो मुचलके हैं वो 50,000 के एवज जो है वो रिहाई मिली है। और आपको मैं बताता चलूँ कि शाहिद असलम इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद हैं, जिन्हें FIA लाहौर ने गिरफ्तार किया था। जी ठीक है, सहाफत कोई जुर्म नहीं है। बहुत शुक्रिया एहतशाम अब्बासी आपका, आपने हमें तफसीलन। PTI और जमाते इस्लामी ऐसा काम ना करें जिससे शहर के हालात खराब हो। जमाते इस्लामी को तवक्को से ज्यादा नशिस्तें मिली। इंतखाबी अमले को हिरासा करना या धमकियां देना अच्छी बात नहीं है। सूबाई वजीर सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले जमाते इस्लामी सिर्फ TV पर बैठकर मेयर कराची मांग रही है। आप बैठेंगे ही नहीं, सिर्फ TV पर मेयर मांगेंगे तो ऐसा नहीं होगा। हम आपके मैंडेट को तस्लीम करते हैं, आप भी करें। रहमान साहब ये कह रहे थे कि सईद गनी ने के अपने भाई को जितवा दिया। मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि ना मेरे भाई की UC में हमने रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी है और ना रिकाउंटिंग हुई है। तो मेरा भाई जो 2 UC से खड़ा हुआ था, एक UC जो चनेसर गोट की हमारी है वहाँ से वो जीता है और एक UC जो महमूदाबाद की है वहाँ से वो हारा है। जहाँ जहाँ जमात इस्लामी की रिकाउंटिंग की दरख्वास्त पर दोबारा गिनती हुई है वहाँ पीपल्स पार्टी ने कोई तूफान नहीं मचाया। हम उससे अमल का हिस्सा बने, जो उसका नतीजा आया उसको मान लेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह से सरकारी ऑफिसर्स को, इलेक्शन में काम करने वाले अमले को हिरासा करना, धमकियां देना, यरगमाल बनाना, ये मुनासिब बात नहीं है। हमारे कुछ लोग कल मेरे पास आए, बहुत गुस्से में थे, बहुत नाराज थे रिकाउंटिंग के हवाले से, लेकिन मैंने उन्हें उकसाया नहीं, मैंने उन्हें तसल्ली दी कि आप उसका हिस्सा बने और इलेक्शन में हार जीत होती है। अगर आप जीत जाएंगे तो भी ठीक है, अगर हार जाएंगे तब भी ठीक है भाई, कोई मसला नहीं, इलेक्शन का ये हिस्सा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि नताइज तब्दील करने का सिलसिला खत्म ना हुआ तो आज से मुल्की एहतजाज और धरना होगा। मुल्क भर की सड़कें जैम कर देंगे। इल्जाम आयद वो सीटें जो हम हजारों के मार्जिन से जीत चुके हैं, उनका फॉर्म 11 भी हमारे पास मौजूद है। उन सीटों पर हमें हराकर पीपल्स पार्टी को जिताया गया। कराची की आवाम ने हमें मैंडेट दिया है, मायूस नहीं करना चाहता। हाफिज नईम ने मजीद कहा कि हमने मजीद 9 सीटें जीतने का दावा किया था, जिनमें से 2 के नताइज हमारे पास आ गए हैं जो कि हम जीत चुके हैं, लेकिन बाकी 7 के नताइज नहीं दिए जा रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में बेहतर ऑप्शन मौजूद है, मेयर जमात का ही होगा। और कराची की चाबी किसे मिलेगी? चुनाव के लिए पेशकदमी जारी है। मुंतखब नुमाइंदों के बाद सिटी काउंसिल में 121 मखसूस नशिस्तों के अरकान का चुनाव होगा, जिसके बाद अरकान, मेयर, डेप्यूटी मेयर और टाउन चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। सारा अमल किस तरह सरअंजाम पाएगा? चेयरमैन बन गए, काउंसिलर्स भी चुन लिए गए, अब बल्दियाती सरबराह के इंतखाब की तैयारी है। मखसूस नशिस्तों पर भी चुनाव की बारी है। कराची की चाबी किसे मिलेगी? स्टेप बाय स्टेप पेशकदमी जारी है। हालिया बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद 2021 के कानून के तहत किया गया। कराची के 7 अजला को 25 टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में तकसीम किया गया। टाउन्स में यूनियन कमेटियों की तादाद 246 है। बराह रास्त मुंतखब होने वाले UC चेयरमैन KMC की सिटी काउंसिल के रुकन होंगे।
KMC में खवातीन की 81, मजदूरों, नौजवानों और अक़लियतों की 12 नशिस्तें मखसूस हैं। ट्रांसजेंडर और खुसूसी ज़रूरियात के हामिल अरकान के लिए भी 2 नशिस्तें हैं। बराह रास्त मुंतखब अरकान पहले मखसूस नशिस्तों के नुमाइंदे चुनेंगे, जिसके बाद ऐवान में मेयर, डिप्टी मेयर और टाउन चेयरमैन का इंतखाब होगा। 121 मखसूस नशिस्तों के साथ अरकान की मजमूई तादाद 3067 होगी। बल्दियाती कानून के मुताबिक मेयर के लिए UC चेयरमैन मुंतखब होना ज़रूरी नहीं, अलबत्ता KMC कौंसिल के रुकन होने की शर्त रखी गई है। मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाले अरकान भी मेयर बन सकते हैं। मेयर के चुनाव का शेड्यूल मुंतखब नुमाइंदों का गेज़ेट नोटिफिकेशन आने के बाद जारी किया जाएगा। कौन बनेगा कराची का मेयर, बड़ा सवाल। सियासी बिसात पर हलचल, जोड़ तोड़ बयानात, इल्जामात। अगर इलेक्शन कमीशन अव्वलीन गैर हतमी नताइज को सामने रखकर फैसला किया जाए तो क्या पीपल्स पार्टी मेयर बना सकती है? क्या जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ मिलकर मेयर बना पाएंगे? कराची का मेयर कौन होगा? बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने के बाद ये सवाल हल तलब है। कुछ एदाद शुमार पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि किस जमात ने कितने वोट्स हासिल किए हैं और कराची का मेयर बनने के लिए कितने वोट्स दरकार हैं। अगर बात करें पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी ने 93 सीट्स हासिल की हैं, जबकि जमात इस्लामी ने 86। तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो 40 सीट्स तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई हैं। मुस्लिम लीग नून 7, JUI 3, तहरीक लब्बैक 2, मुहाजिर कौमी मूवमेंट 1 और आज़ाद उम्मीदवार 3 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुए हैं और कराची का मेयर बनने के लिए 126 वोट्स दरकार हैं। और अब कुछ नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन सी जमातें मिलकर कराची का मेयर बना सकती हैं और कौन सी जमात किस जमात के साथ मिलेगी तो क्या मजमुआ सामने आएगा। 126 वोट्स दरकार हैं। पीपल्स पार्टी ने 93 वोट्स हासिल किए हैं और अगर मुस्लिम लीग नून के 7, JUI के 3, तहरीक लब्बैक 2, MQM 1 और आज़ाद उम्मीदवार 3, ये तमाम ही जमातें और आज़ाद उम्मीदवार अगर पीपल्स पार्टी के साथ एका बना लेते हैं, एक हो जाते हैं, तो उसके बाद भी हम देखते हैं कि मजमूई नशिस्तें 109 हैं। यानी कि पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत अपना मेयर लाने में अब तक नाकाम दिखाई दे रही है। अगर हम ये देखें कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी एक हो जाते हैं और जो दीगर जमातें हैं जिनकी सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर ये सब एक हो जाती हैं तो मजमूई सीट्स की तादाद 195 बनती है, जो कि अक्सरियत में आती है। और यहाँ पर आसानी से कराची के मेयर के लिए जो 126 वोट्स दरकार हैं, उससे जो एदाद शुमार हैं वो काफ़ी हाई हैं और इस तरह से कराची का मेयर बन सकता है। एक और अगर जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के हवाले से बात की जाए तो 86 और 40 वोट्स मिलकर मजमूई नशिस्तें 126 बनती हैं और अगर इनका मर्जर होता है तो भी कराची का मेयर आसानी से हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और हम ये देख भी रहे हैं कि जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मर्जर के हवाले से बातें भी सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब अगर हम ये देखें कि जमात इस्लामी की 86 नशिस्तें हैं और ये दीगर 4 जमातें भी जमात इस्लामी के साथ मर्जर कर लेती हैं तो मजमूई नशिस्तों की तादाद 132 होती है, जो कि 126 से कई ज़्यादा है और यहाँ भी जमात इस्लामी आसानी से अपना मेयर बनाने में कामयाब हो जाएगी। अब आने वाले दिनों में ये देखते हैं कि कौन सी जमात किसके साथ इत्तिहाद करती है और कराची का मेयर कौन होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।